differentiation of implicit function. What is differentiation of implicit functions? तो इससे पहले कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जाने, ये जान लेना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या. व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? सो टू नो अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन, you know that सो y को x के टर्म्स में हम लोग एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स ओके. तो एक्सप्लिसिट माने क्लियरली x के टर्म्स में, और इम्प्लिसिट यानी x के टर्म्स में रहेगा बट फाइनली यू कांट clearly represent y in terms of x. So that is the case of implicit. So example of implicit function sum. So what is the example? We take some example of implicit function. Example. Examples of implicit function. That we say x square plus y square minus a square is equal to 0. This is one of the equation. It's okay. This is equation number 1. ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन. ठीक है. तो एक्चुअली ये इम्प्लिसिट अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात को हम लोग देखेंगे. पहले तो ये समझा जाए तब हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. तो एक्चुअली जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं उसमें यूनिक इमेज कंसेप्ट होता है, लेकिन यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि इफ वी ड्रॉ द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर फ्रॉम हियर, सपोज इफ वी ड्रॉ द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, then we will get the two different cases. Then here what we say that two different cases arises. How? Let's see. तो पहला तो एक ये y बन करके आएगा हम लोगों का. क्या बन करके आएगा y? एक y ये बन करके, अगर इसको सॉल्व करा जाए y, this is the equation of circle, you know, y equal to under root of a square minus x square, and here that we say y is equal to negative of root a square minus x square. So what we conclude over here? So if we see that when we are drawing this equation of the circle, that what we call over here, that say this is x-axis, and here that what we call, that is y-axis, right? And now we are interested to find the equation of represent this circle. How to represent this circle as? So if you see, this is the equation of circle of radius a. So let's say this is a comma 0, and here that is minus a comma 0. If you see over here, that is 0 comma a, and here that is 0 comma minus a, right? So this is the circle represented by this equation 1. And if you see over here that if we draw two different circles of this, what does this function represent? So if you see over here, then whether it is function, so it failures the vertical line test. It failures the vertical lines test, as there are two distinct points where this line, vertical line, cuts the function. Means it violates the unique image concept. So it is not a function over here. But what we see over here, if we conclude like this way, suppose if we draw like this way, that what we call, this is circle, okay, and now if we deduct into different segments, let's say this, okay, so this what we call here, that is the semicircle. This is what's so called, that is the semicircle once again. And here the another part is also that one of the semicircle, right? So if you see over here, this is the another semicircle.
So this is the blue part of the semicircle. This one. This one is the another function. That one. That what we call here minus x square plus under root a square minus x square. This part. So in this circle, there are the two different segments, and let's draw the line also. Y equal to x over here. So let this be x-axis, and here that is, you say, y-axis, y-axis, and here once again this is x-axis, and here that is y-axis, right? This is also here, you can say that this is y-axis. So y-axis is the x-axis. This is also x, and this is also y. So if we split in two different functions, then these functions are called explicit function. Explicit. But here this is called implicit. Implicit means in other way you can say these are treated as a curve in our calculus. अपने calculus में इनको curve की तरह से treat करेंगे. यानी these are the combinations of different explicit function. अलग अलग explicit functions के combination से जो बने हुए function है उनको implicit function बोल सकते हैं. यानी in other words you can say जितने भी conic sections हैं, whatever the conic sections lying over here, those all are implicit function. So in other words you can say conic sections, all conic sections are, except point नहीं रहेगा, are implicit function. Implicit functions. तो अभी हम लोग, हालांकि आप पॉइंट को भी देखें तो वो भी एक तरह से इम्प्लिसिट में ही आ जाएगा अगर पूरे ओवरऑल इक्वेशन को कंसीडर करें, लेकिन पॉइंट खुद ही एक ही पॉइंट है, डायमेंशनलेस है, तो वो अलग एक्सेप्शनल केस हुआ. तो ऑल कॉनिक सेक्शंस आर इम्प्लिसिट फंक्शन. तो एग्जाम्पल हो गया ये. दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल यू कैन से. तो होप सो आपको समझ में आया होगा. मतलब जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करे जो फंक्शन, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है. ठीक है. यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दीज आर द कर्व्स, नथिंग एल्स. तो इन कर्व्स के बारे में जब हम लोग को डिस्कस करना है तो ये कर्व्स मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल करेगा. इम्प्लिसिट फंक्शन जो भी अपने पास है तो ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल करेगा. इट फेल्स वर्टिकल लाइन टेस्ट, फेल्स फॉर vertical line test. यानी those function which fails for vertical line test means unique image नहीं हो रहा है, तो वो सारे फंक्शन implicit functions होंगे. और वैसे सब जो फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो explicit फंक्शन पढ़ते हैं. ठीक है. तो मल्टीवेरिएट फंक्शन भी एक implicit ही बोल जाते हैं, जैसे कि x और y के ट्रीटमेंट में. तो उनको लिखने का फैशन कैसा है, f of x, y equal to 0. दिस इज कॉल्ड, इससे ऐसे फॉर्मेट में एक्सप्लिसिट. हालांकि इस तरह से इम्प्लिसिट को भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का फंक्शन हुआ, लेकिन अगर उसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लिसिट ऑर्डर में, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन बोले जाएंगे. अब इम्प्लिसिट फंक्शन को करना कैसे है डिफरेंशिएट, तो ये हम लोगों को देखना है. ठीक. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक. तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का और क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो एक रिलेशन लेते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. सर एक मिनट सर, लिख रहे सर. कहने का मतलब ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन को वी कांट एक्सप्लेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन. ठीक है. मीन्स उनको y को x के टर्म्स में प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे y को x के टर्म्स में प्रॉपरली सॉल्व कर लिए, समटाइम्स तो सॉल्व ही नहीं कर पाते, अलग अलग सेपरेट भी नहीं कर पाते. ठीक है. और अगर सेपरेट करते भी है तो दो अलग अलग तरह के, जैसे ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया. ठीक है.
सर हो गया सर। हाँ, Need of 1 joule. तो एक इम्प्लिसिट रिलेशन हम लोग बना लेते हैं. Let me take implicit relation that we say, let me say x cube plus y cube, right? And here 3axy. इसको 3axy. Let us, this equation is there. तो अब बताएं यहाँ पे find dy by dx. So to obtain this dy by dx, what we will do here? So let me do first. So differentiate this with respect to x. Differentiate this with respect to x. What we recall over here, that is x cube का differential क्या होगा? 3x square. y cube का क्या होगा भाई? तो that will be say 3y square. ये chain rule कर रहा है. dy by dx is equal to that what we call 3axy का क्या होगा? 3a. अब xy को product rule से differentiate करेंगे. तो क्या होगा? y और x का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. कांट बी राइट लाइक दिस वे. ये चीज समझ में आया? आई दैट इज व्हाट वी कॉल. सो 3 टाइम्स ऑफ, थोड़ा कॉमन वॉमन ले लो भाई यहाँ से, इसको और इसको कॉमन ले लो. तो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट वी कॉल एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और क्या होगा? फिर इसमें +3, इसको इधर भी इधर ले आओ. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस 3 टाइम्स ऑफ दैट व्हाट वी कॉल वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, वन कैन राइट, एंड हियर दैट वी से डी वाई बाई डी एक्स यू कैन टेक आउट कॉमन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ये चीज समझ में आया? सो इन दिस वे वी कैन इवैल्यूएट डी वाई बाई डी एक्स ओवर हियर. सो देयरफॉर वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स, that what we call dy by dx की वैल्यू क्या रहेगी? बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन दैट इज व्हाट वी कॉल हियर वाई स्क्वायर माइनस एक्स. हाँ, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसपोज करेंगे तो समझा. तो इस तरह से dy by dx निकालते हैं. तो लेट्स वी टेक क्वेश्चन नंबर 1. इसी तरह से आप लोग को करने होंगे सॉल्व. ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ, एक ग्राफ लेकर के दिखलाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा. Let find, लिखेंगे find dy by dx, find dy by dx if find dy by dx if y equal to y नहीं ले लेते हैं. क्या लिखेंगे? x cube plus ln y, x cube plus ln y plus ln y minus x square e power y, yes, that we call x square e power y equal to 0. मान लो अब ऐसा दे दिया. ठीक है, तो अभी करना क्या है? डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड में. चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग ट्राई करिए. डिफरेंशिएट बोथ साइड. हाँ, x to the power 2y x power 2 e power y. प्रोडक्ट रूल से करेंगे डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. सो 3x स्क्वायर प्लस, अब ln y का डिफरेंशिएट करने गए तो y डैश अपॉन y. ठीक है, और माइनस अभी x स्क्वायर ई पावर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लो. मान लो ई पावर y को कर रहे हो तो ई पावर समथिंग हो गया. अब y का डिफरेंशिएट तो y डैश हो गया. ठीक है भाई, तो y डैश ही हो गया यहाँ पे. अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? तो दैट इज, अगर फिर एक्चुअली प्लस आएगा तो ब्रैकेट रहेगा, तो माइनस खोल दिया ब्रैकेट. अब यहाँ पे ई पावर वाई को कॉमन ले लो इस बार, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x. सो 2 यहाँ लिख लो, दैट इज इक्वल टू 0. एंड देयरफॉर व्हाट वी से, तो y डैश अभी कॉमन ले लो दोनों में, ये दोनों में y डैश कॉमन ले लो. y डैश कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर तो इधर आएगा ना भाई. y डैश मतलब 3x स्क्वायर, और इसको इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ ले लो. फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ ले लिया
तो ये क्या गया, ये निगेटिव इधर गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो इधर गया निगेटिव, तो इस वाले को इधर गया पॉजिटिव आया, तो 2e⁴y(x) हो गया ये वाला, और ये वाला निगेटिव किया टर्म, तो मेरे पास जगह नहीं, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ 3x² इधर गया, बोले इसको मतलब इन दोनों टर्म्स को इधर पहुंचा दिया राइट साइड में, ठीक है, इन दोनों ही टर्म्स को राइट साइड में पहुंचा दिया। अभी जो बचा हुआ मैं y' कॉमन ले लिया और इससे डिवाइड कर दिया, तो इससे डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, जब डिवाइड करेगा तो ये y' कॉमन लिया, 1 - x², 1/y आएगा, ये भी एलसीएम ले लो तो ये y ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 - x²y, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 - x²y, और e⁴y भी आएगा, e⁴y, और ये फिर y ऊपर पहुंच जाएगा, ये डिनोमिनेटर का, समझ में, यही आंसर होगा। क्लियर? हाँ सर। कैसे करें, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग देख लें, कर लें, आसान होता है। नेक्स्ट, तो एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग ग्राफ से इसको देखा जाएगा। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। यहाँ क्या है, इफ x³ + y², इफ x³ प्लस जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x² और x³ है, x³ + y² और इज इक्वल टू दैट व्हाट वी कॉल साइन ऑफ x + y, ये दिया हुआ, और देन फाइंड dy/dx, देन फाइंड dy/dx। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले साइन a + b का लिखना पड़ेगा ना? नहीं मतलब ओपन करना चाह रहा है, नहीं कुछ नहीं, बस ddx बस करिए। चलिए मैं लिख के दिखलाता हूँ इसको, ऐसी बात है, d/dx ऑफ कुछ भी नहीं करना है, बस ddx करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे बस ये लिख देंगे डिफरेंशिएट, यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट होगा, इसको लिखने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। अब ये हर बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पता नहीं किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस d/dx ऑफ, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लेकर दिखला रहा हूँ, y² और d/dx ऑफ साइन ऑफ x + y। कोई खोलने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट आपको करना है, चेन रूल पकड़ के चल रहा है। चलिए सॉल्व करें। x³ का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बोलिए, 3x²। अब इसको जो चेन रूल से देखो d/dy इंटू dy/dx लिखोगे, तो y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको मैं लिख के दिखलाऊंगी, समझ गए आप यहाँ पे dy/dx, तो दैट विल से हियर 3y²। ये चीज समझ में आया कि मैं लिख के दिखलाऊं? आया सर। नहीं समझ पा रहा है, तो आप ऐसे समझे कि यहाँ पर मैं क्या करके रहा हूँ, ये dx को जो है यहाँ पे dx को उठा करके इधर कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे dx को यहाँ लगा लिया है, यहाँ dy और यहाँ पे dy, ये चीज़ दिखा आपको, यहाँ पे ये dy लगा दिया, ये dy लगा दिया, ये dy से dy कैंसिल, तो dy/dx ऑफ y² हो गया भाई चीज़ आपका, ठीक है भाई। तो d/dy ऑफ y² क्या हुआ, 2y, और इंटू dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ xy करना था, तो अभी क्या करेंगे, अच्छा इसको भी समझने के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हो अभी। तो अभी मैं क्या कर दिया, ये जो dx है, इस dx को उठा करके इधर लगाया, ठीक है भाई। तो अभी अपने को क्या चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, d ऑफ x + y के रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ x + y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन d ऑफ x + y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करने चले हो आप, तो क्या हो जाएगा बोले भाई, साइन का डिफरेंशियल क्या हुआ, cos ऑफ x + y हो गया, ठीक है भाई, और फिर x + y का डिफरेंशियल, अब x को सिंपली x + y को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 + dy/dx, बात समझ में आ रही है इस तरह से। अब dy/dx को कॉमन खींच लो, dy/dx को कॉमन खींचो, चलो अभी सॉल्व कर दो, अब तो करो। सर हाँ बोले, फाइनल आंसर बताओ। हाँ बोले,
cos of x plus y minus 3x square divided by 2y minus cos x plus y. करेक्ट, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से, और ये डी वाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन आएगा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 3x स्क्वायर ये वन वाले में से ले लिया, और अब ये डी वाई डी एक्स वाले में से ले गए, तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर आएगा, 3y क्या है 3x स्क्वायर, क्यों, अच्छा ये एक्स क्यूब प्लस क्या नीचे क्या है आपका 2y minus cos of x plus y. 2y ना, 2y माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये हो गया आपका जो, ठीक, ऐसे ही करना था। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको और डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो आप देखें क्या वो कर्व है, किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ये कोई कर्व है, ये कर्व को ड्रॉ किया गया, उस कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ठीक है, यही फाइनली इसका मतलब होता है। यानी अभी हम लोग टेंजेंट जो फंक्शन पर कर रहे थे, तो फंक्शन को ड्रॉ कर लेते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे। तो जैसे कि लेट्स वी टेक अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट व्हाट वी कॉल हियर, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात पे समझने के लिए। तो मतलब इसका टोटल जो मेथड है ये क्या है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्लियर हो ये बात आपको, ठीक, फाइंड डी बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर क्या था, फाइंड dy by dx, dy by dx if that what we call xy minus x minus 1, xy minus x minus 1 equal to xy minus x minus 1 equal to 0, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। What? हो गया? हाँ सर बताओ। हाँ बोलिए। 1 minus y by x dy by dx is equal to 1 minus y upon x, करेक्ट। तो देखें इसमें अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है इसको, तो ये लिख सकते हैं आप जो स्टेप्स फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हम लोग ध्यान रखेंगे जिससे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में गलती ना हो। स्टेप्स फॉर इम्प्लिसिट, हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक, हाउ टू फाइंड। तो नंबर वन क्या है, नंबर वन दैट व्हाट वी से स्टेप वन, यू कैन से स्टेप वन। स्टेप वन में लिख लेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। स्टेप टू, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कलेक्ट ऑल टर्म्स, कलेक्ट all terms involving
dy by dx on left side of the equation and move all other terms वही जो आप काम कर रहे हो वही उसको बात मैं लिख रहा हूँ. ऑल अदर टर्म्स ऑन या ऑन नहीं, टू द राइट साइड, ठीक है भाई, टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, शायद लिखा ऑफ द इक्वेशन एंड स्टेप 3. फिर क्या होगा? फैक्टर dy by dx out of the left side, dy by dx out of the left side of the equation और स्टेप 4 क्या होगा यहाँ पे? दैट इज सॉल्व फॉर dy by dx. वही निकाल देना आपको, सॉल्व फॉर dy by dx by dividing both sides of the equation, by dividing both sides of the equation by the left hand factor, by इसको ऐसे लिख सकते हैं, by left hand factor that does not contain that, जिसमें डिवाइड एक्स नहीं है, that doesn't contain, दिखा है, doesn't contain dy by dx, जिसमें dy by dx ना रहे. ठीक, यही पूरा हम लोग को वर्क करना रहता है, dy by dx ना रहे. हालांकि अभी इसका दूसरा भी शॉर्टकट मेथड बता देंगे. आप पार्शियल डेरिवेटिव करके एक लाइन में बस सीधे आंसर लिख देंगे, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से सीधे आंसर आएगा, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर यही है सॉल्व करने का. तो लेट्स वी टेक वन मोर क्वेश्चन टू इनबिल्ड आवर आइडिया ऑफ दिस ऑल. सर एक मिनट रुकिए, नोट करें. पहला क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. मैं ये सारे स्टेप्स को अप्लाई करके एक क्वेश्चन में दिखलाऊंगा प्रॉपरली, और उस क्वेश्चन को पूरा आइडिया दूंगा, ग्राफिंग करूंगा. ठीक है, पहले लेट मी डू दिस, और एक एक स्टेप्स को जस्टिफाई करेंगे क्यों ऐसा लिखा गया है, ताकि कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम आए तो उसमें आप अटकने नहीं. और फिर इसके बाद एक शॉर्टकट रूल बताएंगे जिसमें कि यहाँ से डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे, जैसे इसके बीच में कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, बाईपास से डायरेक्ट. ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको दे देंगे, फिर उसके बाद आपको एनिमेशन ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए भाई, पहला स्टेप क्या है? लेट मी रिकॉल फर्स्ट. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वंस लेट मी रिकॉल. तो एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि हम लोग बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वलिटी इस तरह का रहेगा, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे कोई. फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कलेक्ट ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग, ये लिखे हुए हैं ना सारे स्टेप्स, इसी को फॉलो करके मैं दिखाऊंगा करके. कलेक्ट ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग dy by dx ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, एंड मूव ऑल अदर टर्म्स टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, मैं dy by dx जितने हैं उसको सब लेफ्ट साइड में. और S3 स्टेप 3 में क्या फैक्टर कर देंगे, dy by dx फैक्टर dy by dx, dy by dx से कॉमन निकाल लेंगे, जो भी होगा कॉमन निकालने को फैक्टर करते हैं. और S4 स्टेप 4 क्या है? सॉल्व dy by dx इन डिवाइडिंग बोथ साइड विद द इक्वेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फैक्टर एंड इट डजंट कंटेन्स dy by dx. ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट टू डू द क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ. ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो मैं नया ही क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए. तो नया क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का ले देते हैं, या नया क्वेश्चन क्या है, यहाँ से उठ लेता हूँ मैं, याद देखें. चलिए मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ. वो अपने मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है, अपने आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन, जो मॉड्यूल दिया गया उस पर क्वेश्चन अभी मैं दिखला दूंगा. फिलहाल वहीं से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ. फाइंड क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है शायद. फाइंड dy by dx. Find dy by dx given that y cube plus
वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4.4. Anyhow, come to point, minus 4.4 equal to. So if you see over here that what is first step? Differentiate both sides with respect to x. Okay, so let's go for step 1. ये आप मेमोरी में बस रखेंगे कि कैसे स्टेप्स चल रहा है, ये लिखेंगे नहीं, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ, ठीक है. ये जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं कि ये मैं जो लिख के पढ़ाया हूँ ये चीज़ आपको सब क्वेश्चन में फॉलो करेगा. तो स्टेप 1 में क्या लिखा है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्योंकि दूसरा पेज है इसलिए इसको मैं लिखूंगा, आप चाहे तो नहीं भी लिखें, काम चलेगा. फाइनली आपको लिखना नहीं रहेगा हर क्वेश्चन में, लेकिन पहला क्वेश्चन चाहे तो लिख भी सकते हैं आप भी मेरे साथ. तो यहाँ पे मैं तो लिखूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वही स्टेप लिख रहे हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ है. बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा है, यही चीज़ लिखा हूँ मैं, कुछ भी नया नहीं लिखा हूँ. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चलिए, तो यहाँ पे लिखे, ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखेंगे भाई. तो यहाँ पे मैं लिख के दिख लाता हूँ, डी बाई डी एक्स. कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछेंगे आप लोग. डी बाई डी एक्स ऑफ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, एंड 5x स्क्वायर. हालांकि ये ऐसे भी कर सकते हैं, करने को तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, सीधे आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन का भी, डिवाइड एक्स एक लाइन में, ठीक है. कोई घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल. और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है? -4.4, ठीक है भाई, -4.4. तो 4.4 लेने का अर्थ है जो ये यही ले लीजिए ना, -4 ही ले लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. बार बार 4.4, क्योंकि अभी इसको ग्राफिंग भी करेंगे हम लोग ना, ग्राफ भी करेंगे, तो ठीक है. -4 चलिए ले लिया, ठीक है. खैर चलिए रहने दीजिए, -4.4. तो चले 4.4 ही ले लिया मान लीजिए. तो ये क्या हुआ, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, पता नहीं क्यों 4.4 लिया गया. तो आई डोंट होप सो दिस इज, इट सीम्स सो स्कैरी, सो यू कैन कंसिडर दिस एज -4 ऑल्सो. इफ यू सी, आप चेक करेंगे मॉडल में क्या दिया हुआ है, -4.4 ही ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा ईजी लगे, दिखने में साफ सुथरा लगे. तो -4.4 में लिख करके मैं -4 ही ले ले रहा हूँ, ठीक. फिलहाल 0 तो होना ही है, चाहे 4.4 ले लो चाहे -4 ले लो, ठीक. तो अब चलो वाई क्यूब का डिफरेंशियल करो. तो ये क्या करोगे भाई, यहाँ मैं लिख के दिखलाऊँ कि डायरेक्ट मैं लिख दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा अलग करेंगे. फिर क्या होगा, वाई क्यूब का डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख दें क्या? हाँ सर. 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये क्या था, वाई स्क्वायर बन रहा है, इसको चेक करना, वाई स्क्वायर था ये वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स. यज्ञेश समझ में आ रहा है? बोलिए. हाँ सर. -5 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. और यहाँ पे दैट वे से, अच्छा ये -2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल. तो ये 0 हो चुका है, तो इसका जब डिफरेंशियल 0 हो चुका है तो इसको आने दीजिए इधर, इक्वल टू 2x डायरेक्ट में लिख देता हूँ, या हटा ही देता हूँ, इज इक्वल टू 2x लिख देता हूँ, ठीक. इज इक्वल टू 2x, कांट बी राइट लाइक दिस, अगले स्टेप में 2x. तो इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि वो अगला स्टेप आपका हो जाएगा, अगला स्टेप होने के लिए तैयार है. कलेक्ट डी वाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड कर देंगे. स्टेप 2 क्या हो जाएगा, आप देखो स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, collect all the terms of dy dx on the left side of the equation and move all other term to the right side of the equation. तो देखो अभी हम लोगों ने राइट साइड में एक इक्वेशन को मूव कर चुका है, राइट साइड में आ गया, राइट साइड में एक पार्ट को मूव कर दिया है, किसको, 2x को. हालांकि अगला स्टेप में का ही है, वो मैं पहले ही कर दिया. चलिए ठीक है. तो अब यहाँ से डी वाई डी एक्स हम लोग को कॉमन ले लेना है, ठीक है. तो लेट मी राइट फर्स्ट, कलेक्ट द डी वाई डी एक्स टर्म्स, सभी के डी वाई डी एक्स को टर्म्स को कलेक्ट कर लें. कलेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक.
टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, और फिर फैक्टर कर देना है, ठीक है, और मूव कर देना है ये 2x। ये वाला स्टेप हो गया मेरा, ये वाला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। और स्टेप 3 अभी क्या करना है, ये डिवाइड एक्स को कलेक्ट करना, मतलब सबको एक जगह ले आ देना है। अब क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टर डिवाइड एक्स। तो फैक्टर करना है, इसका मतलब डिवाइड एक्स को कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा भाई, 3y² प्लस 2y माइनस 5 और इज इक्वल टू 2x, ठीक भाई। और स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में देखो फिर क्या लिखा है, स्टेप 4 में सॉल्व फॉर डिवाइड एक्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ फैक्टर, लेफ्ट हैंड फैक्टर दैट डजंट कंटेन डिवाइड एक्स। तो लेफ्ट हैंड में जो फैक्टर जो कि डिवाइड एक्स को नहीं ले रहा है उससे डिवाइड कर देने का, ठीक है। और इन दिस वे यू विल गेट द dy by dx, solve for dy by dx, solve for dy by dx, ये कर देना है। तो मैं यही जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये जो मैं स्टेप लिखा वो क्या लिखा था, तो 2x अपॉन 3y² है ना, 3y², तो 3y², लेट मी राइट वो, 3y² प्लस 2y माइनस 5 अंडर ब्रैकेट। सो दैट्स फाइनल आंसर। और अगर इसको कर्व को रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो अभी क्या पाएंगे, देखो 1 रख देते हैं, 1 1 2 माइनस 5 3 1 4 माइनस 4, यस 1,1 से कर्व पास कर रहा है। अगर कर्व को हम लोग ड्रॉ करना की कोशिश करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे कर्व को, लेट ड्रॉ द कर्व, लेट दिस बी x एक्सिस। ऐसा आपको हर इसमें कर्व ड्रॉ करना नहीं है, तो कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अभी आप देखें, ये देखें पहले 1,1 पॉइंट है, ये देखें 1,1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, y की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 आएगी, तो 1,1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, देखा। फिर 1,1 के बाद फिर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखो, 2² माइनस 4 ये कट गया, तो 2 रख दो, तो क्या हुआ 2³ माइनस प्लस 2² 8 प्लस 4 12, ठीक है, माइनस 2 पर वैल्यू क्या रही है, 2,2 पर वैल्यू क्या हो गया 4, और ये 2 कट गया, तो 2,2 पर वैल्यू क्या रही है 2,2, ठीक है। तो 1,1 और फिर क्या रही है 2 पर वैल्यू 2,0 आ रही है, क्या रही है 2,0, x की वैल्यू 2 पे है, 2 की वैल्यू क्या रही है 4 आई ना, कट गया, तो y एक तो 0 आएगा, y की वैल्यू भाई ये सब 0 हो जाएगा ना, तो y कॉमन होगा, तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो y की 2 वैल्यू आ सकती है ना, y की वैल्यू तो 0 आ ही रहेगी 2 पर, तो 2 पर वैल्यू 0 भी आ सकती है और 2 पर वैल्यू 2 भी आ सकती है, 2,0 और 2,2 ये यहाँ पे, और अच्छा y की वैल्यू -2 पर भी आ सकती है। अच्छा ये पूरा कर्व जो है आप देखो, देयर इज अ x पर इवन पावर है, सो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाओ ना, तो राइट साइड में वही उसी तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो 2,0 से पास कर रहा है, 2,2 वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगी 2 और 2, फिर फैक्टर भी तो होगा कि 3 आएगा, क्या आएगा, मतलब y², ये कर लो ना, y कॉमन ले लिया, तो y² प्लस y माइनस 2, हाँ तो 2 और ये 0, एक तो y 0 आएगा, एक y की वैल्यू क्या आएगी 2 1 2, तो 2 और 1, y की वैल्यू 2 और 1 वैल्यू आएगी, ठीक, तो 2,2 भी वैल्यू आएगी, करेक्ट, ठीक। चलो भाई, तो ये वाली वैल्यू इस तरह से आ रही होगी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। और फिर 3 पर वैल्यू क्या हो रही है, 3 पर वैल्यू भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ठीक, 3 पर वैल्यू भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, 3 पर वैल्यू -1, 3 पर वैल्यू आप देखें -1 आएगी, फिर y की x की वैल्यू को 0 कर दो, y की वैल्यू को, हाँ x की वैल्यू को 0 डाल दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y में 3 डिग्री आएगी, तो x की 0 तो y की वैल्यू -3 आ रही होगी, -1 -2 -3, तो -3, फिर इस तरह का घूम जाएगा कुछ स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ घूम जाएगा, ठीक, ऐसे आएगा। अच्छा ये अब ऐसा अगर हम लोग ने ग्राफ बना लिया, तो ये ग्राफ जो है अभी इस तरह का भी बनेगा, तो ये भी -1 -2 पर भी ऐसे ही वैल्यू देगा, और -3 पर, ठीक है।
तो फिर ये वाली वैल्यू ऐसे जा करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी 1 पर वैल्यू, और फिर ये ग्राफ जो है इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा। तो ये ऐसा बन गया आपका, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है भाई, ये ग्राफ तैयार है आपका। कहने मतलब प्लॉट अगर आप देखें कुछ फ्यू पॉइंट्स पर वैल्यू डालेंगे, तो अगर 2,0 पर वैल्यू देख रहे हैं, 2,0 पे 2,0 पर वैल्यू निकालेंगे, तो लेट मी ड्रॉ दिस, ये इसका प्लॉट देख लेते हैं हम लोग। ठीक ठीक, ओके, ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे स्लोप ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं स्लोप। ये कर्व का स्लोप ही है, ठीक है। तो 2,0 पर इसका जो स्लोप है, तो यहाँ पे जैसा 2,0 डाल दो भाई, तो यहाँ पे 2 डालो तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो यहाँ देखो 2 डालो, 2,0 डाल दो इसमें, ये पॉइंट 2,0 डाल दो, डिवाइड एक्स एट 2,0 बोलो क्या आएगा, 2 रख दो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 0 रख दो तो 5, तो वैल्यू क्या होगी 2,0 पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ देखो 2,0 रखो भाई पॉइंट, तो क्या वैल्यू आई, 2,0 रखने पर क्या वैल्यू आ रही है बोलो, 2 यहाँ रखा 4 आया तो -4/5, समझ में आ रहा है। फिर अभी 1 पर वैल्यू अगर आप देख रहे हो, तो 1 पर वैल्यू ये देख रहे हो, ये ठीक है। तो 1 पर ही जो वैल्यू मिल रही है, 1 पर वैल्यू यहाँ देखो ये -3 मिलेगी, तो 1 पर वैल्यू -3 भी रहेगी। तो 1, -3 पर वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, 1, -3 इस वाले पर वैल्यू 1 ऐसे, मतलब ये ग्राफ स्टीप होगा, ठीक है। 1, -3 पर टेंजेंट निकालने की कोशिश करो तो इसका स्लोप क्या आएगा 1/8, 1 यहाँ रख दो, -3 रखो, ठीक है, 9, 3, 27, 6 -6 -5 -11 -1/8, ठीक है। x = 0 रखो, x = 0 पर वैल्यू रख दो, x = 0 यानी यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, दिस मीन्स ये एकदम बेस इस तरह से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट। अच्छा 1, पर वैल्यू देखो, 1, पर ये ऐसे घूम गया है, ये वर्टिकल टेंजेंट है, टेंजेंट डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड, ठीक, ये होगा। तो इससे स्लोप के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है, ये बात समझ में आ रही है। तो चलो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, b की वैल्यू -3 ले लिया, c की वैल्यू 2 ले लिया, d की वैल्यू 0 लिया, f की वैल्यू 1 लिया है। यानी जो इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है मेरा, वो क्या बन गया 1x³ - 3x² y + 2xy² + 0y³ ये वाला 0 ले लिया d का, और ये f की वैल्यू 1 ले लिया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये फंक्शन तो है नहीं भाई, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है देख रहे हैं, शो d/dx, अगर इसका d/dx निकालिए, चलिए आप लोग फटाफट निकालिए इसको, d/dx जल्दी सॉल्व करिए, 3x² ये कर देंगे, इसका d/dx निकालिए, निकला, देखिए इसका d/dx ये आ जाएगा, ये शोइंग इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, ये वाली बात, ये देखिए यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिखला दे रहा हूँ, हाँ सर, इससे लड़ रहा है, यहीं पे रखा रहा हूँ, यहाँ दिखेगा, यहाँ वाइट कलर, इस पे दिखेगा कंट्रास्ट, ठीक, यहाँ दिखा d/dx ये आ गया इसका। ये अभी मैं बताऊंगा कि ये जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर दिया, ये तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है कैलकुलेट कर देगा। तो अब देखो एक ही वैल्यू को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे ग्राफ भी चेंज होगा और d/dx का स्लोप भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू को मैं अभी 0 कर रहा हूँ, तो वो ग्राफ ये पूरा चेंज हो गया एक वैल्यू 2 लेने पर, और ये देखो आपका स्लोप भी चेंज हो गया, ये इस पर ध्यान दो जाए, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, एक ही वैल्यू 1 वापस लेने पर 3.13 - 3x² आया था, और फिर एक ही वैल्यू फिर वापस हम ले रहे हैं, ये देखो ये चेंज हो रहा है वैल्यू, ठीक है। d/dx पे भी ध्यान रखिएगा और ग्राफ पे भी ध्यान रखिएगा, पूरे ग्राफ का पैटर्न जो है चेंज होता नजर आएगा, ठीक। तो अभी फिलहाल एक ही वैल्यू को हम वापस वही 1 पे रख दिया जहाँ पे हम लोग ले लिया था अपने d/dx को, ठीक। तो ये d/dx आपका हो गया। अब देखिए मैं इस पर टेंजेंट लाइन को भी दिखला रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये अपनी टेंजेंट लाइन है, ये इस समय x = -4 पर टेंजेंट है,
तो जैसे जैसे मैं ये ले जाऊंगा, रेड लाइन देखो ये टेंजेंट इसका ग्राफ को चेंज करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखिए ये ग्राफ के इस वाले विंग पर ये स्लिप करेगी, ये देखिए ये अगर आगे ले जाते हैं तो यहाँ ग्राफ नियरली इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। ये टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन उतर जाएगी। ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है। शो दैट इम्प्लिसिट डेरिवेटिव या आपकी जो दिखेगी वो ये होगी, और इस पे डी वाई बाई डी एक्स हर एक पॉइंट पर, जैसे अभी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था ना, वो 1,-3 पर वैल्यू क्या हो रही है, 2,2 पर वैल्यू क्या आ रही है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0,-3 पर क्या वैल्यू आई थी जो पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव होगी। तो जैसे यहाँ पर ये पॉइंट क्या खड़ा है, यहाँ पे देखिए जो है ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये नियरली ये जैसे 2 है, 2 पर x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर डेरिवेटिव का स्लोप कितना आया है, ये एंगल ये यहाँ पे दिख लेगा, तो 0.66, ये देख रहे हैं। ये जो डी वाई डी एक्स ये आपका जो दिख रहा है वो आपका ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये वाला वैल्यू। शो दैट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है। अब देखो 2 से जैसे जैसे हम लोग नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। आप ध्यान से देखिए 2 पर वैल्यू जो है आज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये वैल्यू, इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलेगा ये वैल्यू कैसे बढ़ रही है और कैसे कैसे कम हो रही है। तो ऐसे से आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू जाकर के नियरली 0.52 के आसपास, ये 0.51 पर सस्टेन कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये वैल्यू उठा रहे हैं तो x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू आ रही है, और ये फिर सीधे इस तरह से आ रही है। धीरे धीरे आगे चल करके ये अभी अनडिफाइंड होने वाली है, ठीक है, टेंजेंट, और आगे जाएंगे तो ये वैल्यू देखो बहुत तेजी से बढ़ रही है डी वाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। एनीहाउ ये अभी स्पेस नहीं, इस पर मैं ले लेता हूँ। यहाँ देखें डी वाई डी एक्स इस जगह पे वैल्यू क्या आ रही है, -2 पर वैल्यू क्या हो रही है, -5.5। यहाँ पे देखिए फिर से ये टेंजेंट लाइन देखिए ये जस्ट इसी जगह पर है, ये नेगेटिव में आ रहा है स्लोप, और ये फिर जो है एक्यूट एंगल बना लिया। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये अभी ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है इसलिए नेगेटिव है, और फिर अभी जैसे ही ये मुड़ा तो ये देखिए ये एक्यूट एंगल बनाने लगा टेंजेंट, और फिर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा डी वाई डी एक्स की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है डी वाई डी एक्स, ये जो आपने डी वाई डी एक्स कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ये। और इसी में x की डिफरेंट वैल्यू डाल करके ये डी वाई डी एक्स से कैलकुलेट हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर है तो इसलिए कैलकुलेट करके वो सीधे दिखला दे रहा है वैल्यू आपको। और ये सारी चीज़ें ये ए बी सी के चेंज होने पर ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे डी की वैल्यू चेंज हो रही है, एफ की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये सभी जगह पर इस तरह से टेंजेंट की सारी वैल्यूज जो है चेंज होती नजर आएगी आपको, ठीक है। ये डी वाई डी एक्स वैल्यू भी चेंज होती है। तो ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स का ग्राफ है ये, और इससे ग्राफिंग कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेटर से, इससे टेंजेंट का स्लोप का पैटर्न दे सकते हैं। तो मैं ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ईच जगह पे अलग अलग वैल्यू देता है। एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टेंजेंट अलग अलग यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 2 पर ही जो है आप यहाँ से कैलकुलेट होगा, लेकिन y की डिफरेंट वैल्यूज भी रहेगी, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में टेंजेंट का बिहेवियर या अलग तरह का रहेगा, ठीक। इसको घुमाइए लाइक दिस, ठीक। अच्छा एक इसमें होमवर्क आप लोग लेंगे, जो कॉनिक सेक्शन नहीं होता है, इसी तरह का एक कॉनिक सेक्शन होता है। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो उसका जो कॉनिक सेक्शन का होता है उसको dy by dx सॉल्व करेंगे, एलिप्स के लिए, सर्किल के लिए, हाइपरबोला के लिए, सबके लिए। तो मैं ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चेक ओवर। तो यहाँ देखेंगे, उसको मैं बना के रखा हूँ आपको दिखलाने के लिए। तो लेट्स सी, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप जरा देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f, वो कॉनिक सेक्शन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे 1x स्क्वायर हमने ले लिया है, 0.8xy ले लिया है, और 1y स्क्वायर लिया है, और 0x प्लस 0y और -1 यानी इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसको सर्किल बनाने के लिए इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, b को जस्ट 0 ले लेते हैं। ये देखें जैसे जैसे मैं b को बड़ा कर रहा हूँ सर्किल बढ़ता जा रहा है, और सर्किल फिर बाद में डीजनरेटेड भी जा करके पैरेलल लाइन बन जाएगा। ये हाइपरबोला बनने के लिए तैयार है, ये b की वैल्यू को कम करते हुए। ये देख रहे हैं सर्किल का ये, और जब हम इस b को जो है ये खत्म कर देंगे, मतलब सर्किल का कंडीशन क्या होता है, b को 0 कर देना होता है ना। b को देखिए 0 कर दिया, जस्ट यहाँ देखिए b पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे,
बी को जस्ट जीरो कर दिया, ये देखिए बी को जीरो कर दिया, याद है क्या, बी जीरो कर दिया तो देखिए सर्किल बन गया है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर सर्किल डिपेंड करता है। अब ये कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, सर्किल छोटा और बड़ा, सर्किल का छोटा और बड़ा होना इनके कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। देख रहे हैं, सर्किल की वैल्यू अगर जो है जीरो से भी जो छोटी चल रही है, ये मतलब ये माइनस है ना वैल्यू, ये इधर आ रही है, सर्किल की वैल्यू, ये पॉइंट सर्किल की तरफ वो डिमिनिश हो रहा है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट लाइन भी देख सकते हैं, तो ये देखिए टेंजेंट लाइन है, ये हर जगह पे सर्किल पर टेंजेंट, तो आप समझ रहे हैं रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है वो सर्किल का टेंजेंट है, और इसका अगर स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे -1.54, यहाँ पर देखिए ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, लेकिन ये नॉट डिफाइंड को यहाँ पे शो नहीं कर पाता है कैलकुलेटर में, ये एक्सपल टू यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह के सर्किल का ऊपर ये टेंजेंट दौड़ेगा। लेकिन अगर अब हम लोग इसी को बी को जो है थोड़ा इलिप्स की टाइप का स्ट्रक्चर बना दें, तो ये देखिए कॉनिक सेक्शन के में ये टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से आएगा, जबकि आप यहाँ पे शो टेंजेंट लाइन शो स्लोप हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, अभी हम लोग हाइपरबोला बनाने की कोशिश करेंगे इसको, तो हाइपरबोला बना देते हैं, ठीक है। हाइपरबोला इस तरह से, ये है अपना हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है, शिफ्टेड है वैल्यू, तो ये देखिए टेंजेंट के बन रहा है, ठीक, यहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है। तो इसका भी डी/एक्स मैं यहाँ पे निकाल के रखा नहीं हूँ, तो डी/एक्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। डी की वैल्यू देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, तो हाइपरबोला का पैटर्न शिफ्ट हो जा रहा है। अब ये हाइपरबोला इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है लाइक दिस, और ये एफ की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर आप ये जाने एफ को इस तरह से मैं अरेंज कर दूँ यहाँ नीचे, तो ये अभी भी हाइपरबोला का वर्टेक्स है जो कि बहुत पास पास पड़ा हुआ है, ठीक, लाइक दिस वे। अब इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर भी बन जाते हैं, डिपेंड करता है, वो आपको सेलेक्टिव वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, ए बी सी डी की कैसी वैल्यूज़ सेलेक्ट करके आप रख रहे हैं, इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो अब अभी आप कैसे, अभी तो बी पर भी डिपेंड कर रहा है ये कैसे ये घूम रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो ये देखिए सी डी वैल्यू है, ये वर्ड एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक। यहीं से इसी ए बी सी डी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से आपको सभी चीज़ें मिल सकती हैं, पेयर ऑफ लाइन मिल सकती है, आपका क्या बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। अब देखिए जस्ट यहाँ पर ये रखने पर देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लगा हम लोगों को, ठीक, डी जनरेटेड है, एक्चुअली वो हाइपरबोला ही है, ये बहुत ही कर्व बहुत दूर से आ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिलहाल नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली ए बी सी डी की वैल्यू इस तरह से मिलेगी जिसमें कि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये देखिए शायद ये पैराबोला टाइप का स्ट्रक्चर मिल चुका है अपने पास। तो पैराबोला का जो है कॉन्केविटी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट ऊपर नीचे हो रहा है, और इस बी की वैल्यू बनाए तो या शायद वो हाइपरबोला ही है, उसका दूसरा विंग दिख रहा है आप लोगों को। अब वो डिपेंड करता है ए बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो डी/एक्स भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं लाइक दिस वे, ठीक है। तो जहाँ पे आप ले जाएंगे वहाँ पर टेंजेंट निकलेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे ही है। तो मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन पे डिफरेंशियल दिखाने का ये मेरा मेन मकसद था। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में टाइम तो हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेटिव के कैसे जल्दी से निकल जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करके डिफरेंशिएशन मैं निकालने की कोशिश करूँगा, और बताऊँगा कि कैसे तुरंत जल्दी से निकालते हैं डेरिवेटिव, एंड मोर ऑन डेरिवेटिव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में